A very good evening and welcome all to the first edition of Khelo India Para Games 2023. It's time for the presentation ceremony for parachuting. Joining us today, guest of honor for the ceremony is Shri Ramcharan Meena, Section Officer, Ministry of Youth Affairs and Sport, accompanied by Shri Bhupendra Yadav, Section Officer, Ministry of Youth Affairs and Sport. I'll now request our ushers to guide the medal winner and guests toward the ceremony area. Respected guests, the winner of the bronze medal at the Khelo India Para Games 2023 representing Punjab. Please put your hands together for Mr. Dalbir Singh. I would now request Shri Ramcharan Meena ji to kindly present the medal to the winner. Thank you, sir. The winner of the silver medal at the Khelo India Para Games 2023, representing Telangana. Please put your hands together for Mr. Satya Janardhana Sridhar Royala. I'll now request Shri Bhupendra Yadav ji to present the medal to the winner. Thank you, sir. And now it's time for the winner of the gold medal at the Khelo India Para Games 2023, representing Rajasthan. Please put your hands together for Mr. Vijay Singh Kuntal. I'll now request Shri Ramcharan Meena ji to kindly present the medal to the winner. Thank you, sir. Now I would like to request our dignitaries and the winner together in front of the podium for the official photograph, please. Thank you, sir. We thank our guests for joining us today for the medal ceremony. Thank you.
Very good evening and welcome all to the first edition of Khelo India Para Games 2023. It's the time for the presentation ceremony for parachuting. Joining us today, guest of honor for the ceremony is Shri Subhash Rana, National Coach, Pistol. Accompanied by Shri Satpal Singh Rathore, Chief Range Officer, 25 meter. I will now request our ushers to guide the medal winner and the guests toward the ceremony area. Respected guests, starting with the R5 10-meter air rifle prawn mixed SS2. The winner of the bronze medal at the Khelo India Para Games 2023, representing Telangana. Please put your hands together for Mr. Satya Janardana Sridhar Royala. I now request Shri Subhash Rana ji to kindly present the medal to the winner. Thank you, sir. The winner of the silver medal at the Khelo India Para Games 2023, representing Rajasthan. Please put your hands together for Mr. Vijay Singh Kuntal. I'll now request Shri Satpal Singh Rathore ji to present the medal to the winner. Thank you, sir. And friends, now it's now time to announce the winner of the gold medal at the Khelo India Para Games 2023, representing Haryana. Please put your hands together for Mr. Rampal. I'll now request Shri Subhash Rana sir to kindly present the medal to the winner. Thank you, sir. Now I'm requesting the dignitaries and the winner to gather in front of the podium for the official photograph, please. And I request to everyone who's present here as an audience, please put your hands together to the winner of P5, R5, 10-5 air rifle prawn mix. Please put your hands together loudly. Thanks for your cooperation. We thank our guests for joining us today for the medal ceremony. Thank you.
A very good evening and welcome all to the first edition of Khelo India Para Games 2023. It's the time for the presentation ceremony for athletics. Joining us today, guest of honor for the ceremony is Miss Shakun Bhogra and accompanied with Miss Naina Rana, ISSF Range Officer. I would now request our ushers to guide the medal winners and guests toward the ceremony area. So respected guests, starting with P1 10-meter air pistol men's SH1. The winner of the bronze medal at the Khelo India Para Games representing Maharashtra. Please put your hands together for Mr. Vaibhav Raje Bapu Randive. I would now request Ms. Shakun Bhogra, Shooting Coach Sports Authority of India, to kindly present the medal to the winner. Thank you, ma'am. The winner of the silver medal at the Khelo India Para Games 2023 representing Rajasthan. Please put your hands together for Mr. Rudransh Khandelwal. I'll now request Ms. Naina Rana to present the medal to the winner. Thank you, ma'am. And now it's time to announce the winner of the gold medal at the Khelo India Para Games 2023. Representing Haryana. Please put your hands together for Mr. Manish Tarwang. I'll now request Ms. Shakun Bhogra to kindly present the medal to the winner. Thank you, ma'am. Now I'm requesting the dignitaries and the winners to gather in front of the podium for the official photograph, please. We thank our guests for joining us today for the medal ceremony. Thank you. And it's my request to all of you, please put your hands together to the winner of P1 10-meter air pistol man SH1 event. Thank you.
A very good evening and welcome all to the first edition of Khelo India Para Games 2023. It's time for the presentation ceremony for parachuting. Joining us today, guest of honor for the ceremony is Mr. Arun Singh, ISSF Range Officer, accompanied by Ms. Sarita, ISSF Range Officer. I would now request our ushers to guide the medal winner and the guests toward the ceremony area. So respected guests, the winner of the bronze medal at the Khelo India Para Games 2023 representing Delhi. Please put your hands together for Ms. Bhakti Sharma. I'll now request Mr. Arun Singh to kindly present the medal to the winner. Thank you, sir. The winner of the silver medal at the Khelo India Para Games 2023 representing Uttar Pradesh. Please put your hands together for Ms. Sumedha Pathak. I would now request Ms. Sarita to present the medal to the winner. Thank you, ma'am. The winner of the gold medal at the Khelo India Para Games 2023, representing Madhya Pradesh. Please put your hands together for Miss Rubina Francis. I'll now request Mr. Arun Singh to kindly present the medal to the winner. Thank you, sir. Now, I would like to request the dignitaries and the winners to gather in front of the podium for the official photograph, please. And all respected guests, now I would like to let you know the top 3 rankers till now in this parachuting competition. The first one, Khelo India Para Games 2023. On the rank 3 with 1 gold and 1 bronze. Please put your hands together for Maharashtra. On the second place, 2 gold, 2 silver and 1 bronze. Please put your hands together for Rajasthan. And on the number 1 position with 3 gold, 3 silver, 1 bronze, total 7 medals. Please put your hands together for Haryana. Now, I kindly request all of you to get ready for national anthem. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की। Thank you very much, friends. Okay, so now we would like to thank our guests for joining us today for the medal ceremony. Thank you. नमस्कार, मैं हूँ नमस्कार नमस्कार, मैं हूँ स्वाति भाटिया और इस वक्त मैं हूँ डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज पर और मेरे साथ जो है वो है 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल की विजेता गोल्ड मेडलिस्ट मोना अग्रवाल। मोना, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम।
तो एक बार फिर आपको बता दें कि 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग पोजीशन में मोना अग्रवाल ने गोल्ड मेडल जीता है। मोना, बहुत बहुत मुबारक आप। थैंक यू मैम। मोना, हम आपसे वैसे भी बात कर चुके हैं, ऑफ कैमरा भी हम इनसे बात कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त मैं जानना चाहती हूँ, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि किस तरह की तैयारी थी और आपको 2 मेडल मिले हैं, तो ये किस तरह की आपकी तैयारी थी? जी, तैयारी मेरी बहुत बढ़िया थी क्योंकि अभी मार्च में 2024 में वर्ल्ड कप है, तो हम लोग उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये उसी का एक पार्ट था। तो हम लोग काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, अभी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है हमारी, क्योंकि मार्च वाला वर्ल्ड कप जो है वो हमारे काफ़ी सारे कोटा प्लेसेस रखते हैं हम वहाँ पे, तो हम चाहते हैं कि हम मैक्सिमम कोटाज डिज़र्व करें वहाँ पे। बिल्कुल। और मोना, आप हमें बता चुकी हैं कि आपने जो है बहुत ही हाल ही में शुरू किया, यानी कि 2-2.5 साल पहले से ही आपने तैयारी शुरू की थी, और इससे पहले आप एक एथलीट थी, एथलेटिक्स करती थी, तो उसके बारे में अपनी जर्नी पे थोड़ा सा बताइए। मैंने अभी है ना दिसंबर 2021 के अंदर शूटिंग स्टार्ट किया है, और 2016 दिसंबर से मैंने एथलेटिक्स खेलना शुरू किया था। एथलेटिक्स में मैं 2 साल तक कंटिन्यू गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ तीनों थ्रो इवेंट के अंदर। लेकिन उसमें मुझे लगा कि मेरी बॉडी जो है वो प्रॉपर मतलब एथलेटिक्स को सपोर्ट नहीं कर रही है, तो फिर मैंने पावर लिफ्टिंग किया। पावर लिफ्टिंग में भी मेरे पास गोल्ड मेडल है स्टेट लेवल पे, लेकिन उसमें भी मुझे ऐसे लगा कि उसकी डाइट इतनी ज़्यादा लेनी पड़ती है कि हम वेट पुट ऑन कर लेते हैं, तो फिर आगे फिर हमको लाइफ मतलब सर्वाइव के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। आई एम द फाउंडर प्लेयर फॉर गर्ल्स टीम के लिए, सिटिंग पैरा वॉलीबॉल के लिए, तो मैंने पूरे इंडिया के अंदर गर्ल्स टीम प्रिपेयर करी थी, लेकिन वो टीम इवेंट था और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो है वो कैलकुलेट नहीं होती। तो ये सारे एक्सपीरियंस लेने के बाद में मैं फिर लास्ट में शूटिंग के अंदर आई थी, और दिसंबर 21 के अंदर मैंने शूटिंग स्टार्ट किया, और मार्च के अंदर मेरे पास सिल्वर मेडल था नेशनल लेवल पे। तो मोना, हम ये तो जान चुके हैं कि अब आपने वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है, और 2024 में वर्ल्ड कप होने वाला है, उसकी इसके अलावा किस तरह की तैयारी रहेगी? स्पेशली मेंटल हेल्थ के लिए आप क्या काम करती हैं? हम लोग है ना इसके लिए बहुत सारी हमारी प्रिपरेशन चलती है, जैसे मेंटल एक्सरसाइजेज होते हैं। हमारा रूटीन मॉर्निंग में 5 o'clock से स्टार्ट हो जाता है, जो इवनिंग में 6 o'clock तक चलता है हमारा रूटीन। तो बहुत ही टफ ट्रेनिंग शेड्यूल रहता है। मतलब मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनको भी पूरा टाइम नहीं दे पाती हूँ। पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है, और हम पूरे देश को आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन, आज आपने मेडल जीते हैं, और हमें उम्मीद है आगे भी हम यूं ही आपके साथ बात करते रहेंगे और मेडल्स यूं ही गिनवाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मार्च वाले वर्ल्ड कप के अंदर मैं आपको कुछ अच्छा गुड न्यूज़ दूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ मोना अग्रवाल दूरदर्शन स्पोर्ट पे, और मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड चैंपियनशिप आने वाली है 2024 में, उसमें भी इनका क्वालिफिकेशन हो चुका है। देखना ये है कि शूटर्स आगे कितना परचम लहराते हैं और हमारा नाम कितना और रोशन करते हैं। स्वाति भाटिया, डीडी स्पोर्ट्स। हाँ यार, मैं हैरान हूँ। यार लाइव 10 मीटर एयर। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, एक बार फिर मैं हूं स्वाति भाटिया, और इस वक्त हम हैं डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज न्यू दिल्ली में, और इस वक्त मेरे साथ जो मेडलिस्ट हैं वो है 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग पोजीशन में, जिन्होंने गोल्ड जीता है। आपका बहुत बहुत स्वागत हो। थैंक यू। तो स्वरूप, आपने हमसे वैसे भी बात की है, और स्वरूप जो है हम आपको बता दें कि ओलंपियन भी हैं, और ये काफ़ी गेम्स खेल चुके हैं और काफ़ी सीनियर प्लेयर हैं। तो इस वक्त आपका गोल्ड और किस तरह की तैयारी? मैं 2008 से खेल रहा हूँ, और मेरा फर्स्ट नेशनल था 2012 में, और लगातार मैं कंटिन्यूस 12 साल से खेलते आ रहा हूँ कॉम्पिटिशन्स। बट ये कॉम्पिटिशन्स मेरे लिए ख़ास था क्योंकि ये इंडिया का पहला खेलो इंडिया फर्स्ट पैरा गेम्स कॉम्पिटिशन है, जो कि यहाँ से आगे पैरा एथलीट्स एक नई ऊंचाई पे जाके इंडिया के लिए मेडल्स लाएंगे। तो ये खास और आम तौर पे बोला जाए तो बेहतरीन कॉम्पिटिशन है ये। बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि खेलो इंडिया जो है वो पैरा गेम्स को उन्होंने लॉन्च किया है। तो जाहिर सी बात है, जब आप आगे जाएंगे तो इसकी अलग तरीके की तैयारी होगी, तो उसमें आपका क्या स्टेक है? सॉरी
मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जिस तरह से आपने बात की कि अभी जो पैरा गेम्स हैं ये खेलो इंडिया ने पहली बार लॉन्च किया है, तो पैरा गेम्स तो हमें मिल चुकी हैं, लेकिन इसके बाद अब डेफिनेटली आप आगे और बहुत सारे पड़ाव क्रॉस करेंगे, उसके लिए किस तरह की तैयारी रहेगी और कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपको लगती हैं कि और आने वाली हैं? अगले साल पेरिस पैरालंपिक्स होने वाले हैं 2024 में, तो हमारी तैयारी उसके लिए चालू हो गई है। बहुत सारे कोटा प्लेसेस आ चुके हैं और अभी और एक कोटा मैच ये दिल्ली में ही करनी सिंह पे होने वाला है, तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो देखते हैं कि आगे ये जो वर्ल्ड कप है उसमें और सारे कोटा मिलेंगे और पेरिस में जाएंगे और हमारे खिलाड़ी इंडिया के लिए मेडल लेके आएंगे पेरिस में। स्वरूप, देखिए शूटिंग के बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं, मैं अब जानना चाहती हूँ कुछ ऐसी बात आप बताएं हमारे दर्शकों को, जो उनके पेरेंट्स को या जो लोग देख रहे हैं आपको और वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, आपने अपनी जर्नी कैसे शुरू की और उनको कैसे मोटिवेट करते हैं? मेरी जर्नी तो स्टार्ट हुई कोल्हापुर से। मैं साधारण फैमिली से हूँ और मेरे मम्मी पापा जो है वो छोटा सा काम करके हमारा गुजारा करते थे, पेट पालते थे हमारा। तो हमारी वैसी जर्नी स्टार्ट हुई, तो और उसके बाद बहुत सारे लोगों का मुझे सपोर्ट रहा यहाँ तक आने के लिए, उनकी मदद से और पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया और एसटीसी पैराशूटिंग की मदद से हम आगे बढ़ते चले गए और टोक्यो 2020 तक हमने पार्टिसिपेट किया। तो मैं दुनिया के तमाम मम्मी पापा या पेरेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि जो दिव्यांग घर में बच्चे हैं उनको घर से बाहर निकाले, उनको आगे बढ़ने का मौका दें और उनके जीवन में एक नया कुछ देने की कोशिश करें, ताकि वो अपने पैर पे खड़े होके इस हमारे जैसे एथलीट बने या फिर और कुछ बने और वो अपनी जीवन में आगे चले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वरूप हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ स्वरूप, और वाकई में इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि सभी माता पिता को ये एक मैसेज है कि अगर आपके घर में भी कोई बच्चे हैं जो कि आपको लगता है कि वो कर सकते हैं, आगे खेल सकते हैं, तो उनको ज़रूर इस गेम में लेकर आइए और जो है उनको आगे प्रोत्साहन दीजिए। मैं हूँ स्वाति भाटिया, डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज पर। थैंक यू। तो हम हैं डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज पर और हम हैं डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज पर और हम आपको बता दें कि पैरा गेम्स जो है यहाँ पे शुरू हो चुके हैं और उसका आगाज़ हो चुका है। 13 तारीख से गेम्स खेली गई थी और ये जो है खेलो इंडिया जो है उससे पहली बार जो है एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि पैरा गेम्स चल रहे हैं, यानी कि खेलो इंडिया ने पहली बार पैरा गेम्स को लॉन्च किया है और बहुत सारे इवेंट्स आप देख ही रहे हैं रेगुलरली। और इस वक्त मेरे साथ जो है वो फर्नेसिस हैं जिन्होंने अभी 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच मैम। किस तरह का अनुभव रहा आपका? ये पैरा गेम्स पहली बार यहाँ पे लॉन्च की गई हैं, उसमें किस तरह का अनुभव है? बहुत अच्छा लगा। जब ये लॉन्च हुआ था तो उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा प्लान्ड आउट होगा, बट होपफुली इट वाज गोइंग गुड एंड ये प्लेटफॉर्म देने के लिए थैंक यू सो मच। तो आगे की किस तरह की तैयारी है आपकी? अभी तो बेसिकली हमारा वर्ल्ड कप है। अभी खेलो इंडिया के बाद वी हैव लाइक रेस्ट है 1-2 महीने का, बट उसमें हमें ट्रेनिंग करनी है। कॉम्पिटिशन्स नहीं है, बट मार्च में वर्ल्ड कप है तो उसी की मेन तैयारी चल रही है।
और जानना चाहते हैं, जैसे उतार चढ़ाव आते ही हैं, गेम्स हम खेलते हैं तो कभी स्कोर अच्छा भी होता है, हिट कभी उससे कम भी होता है, तो आप किस तरह की आप अपनी मेंटल हेल्थ को इसको बनाए रखते हैं ताकि आप जो है इफेक्ट ना हो उससे? गेम हार जीत का एक किस्सा है, कभी हार होती है कभी जीत होती है, तो उतना माइंड में हम नहीं लेते हैं, बट पॉजिटिव वे में लेते हैं कि अगर हारे हैं या हारे नहीं है, कुछ सीखना है उससे, हार से, तो उस सीख को और वो कमी को पूरी करके हम दूसरे मैदान में आते हैं, वापस कम बैक करते हैं। थैंक यू सो मच और आपको आगे के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। तो ये थे हमारे साथ सारे पैरा ओलंपियंस जो पैरा गेम्स खेल चुके हैं, पैरा एथलीट्स थे और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इस वक्त स्वाति भाटिया डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज से टेकिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।